بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 121 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل جہاں ہم پہنچے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو کل ہم بیان کر رہے تھے کہ زرتشت کی قسم بہمن جاذبیہ نے کہا، خالد ان شکاریوں میں سے نہیں جو پنجوں میں آئے ہوئے شکار کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کیا اس کی ساری فوج ہمارے علاقے سے نکل گئی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے عین التمر سے آیا ہوا ایک قاصد کے ساتھ۔ تو دوستو، وہ جو قاصد ہے وہ کہتا ہے کہ میں پوری خبر لایا ہوں سالار۔ اس آدمی نے کہا عین التمر، ہیرا اور دوسرے شہروں میں جن پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کی بہت تھوڑی فوج رہ گئی ہے اور ایک سالار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بڑا لشکر دمتل جندل چلا گیا، جہاں ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ شمشیر بن قیس نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، اس وقت اپنے مفتوح علاقے مسلمانوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور سوال و جواب کے بعد بہمن جاذبیہ کو یقین ہو گیا کہ اس آدمی غلط خبر نہیں لایا ہے۔ بہمن کو معلوم تھا کہ جو دمتل جندل کتنی دور ہے اور وہاں تک پہنچنے اور واپس آنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، بہمن جاذبیہ نے اس آدمی سے کہا، اور شمشیر بن قیس سے کہنا کہ اتنا بڑا انعام تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے جسے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی تمہارے پاس تاجر کے روپ میں آئے گا، اس کے ساتھ تمہاری بات ہوگی، وہ تمہارا سائل ہوگا۔ ہم بہت جلد حملے کے لیے آ رہے ہیں، اندر سے دروازہ کھولنا تمہارا کام ہوگا۔ کیا ہوگا محترم باپ؟ بہمن کی بیٹی نے عین التمر کے سوار کے جانے کے بعد بہمن سے پوچھا، مسلمان کہاں چلے گئے؟ او میری پیاری بیٹی، بہمن نے بیٹی کو فرتج مسر سے گلے لگا لیا اور پرجوش اور پرعزم آواز میں بولا، مسلمان وہیں چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ مدائن تک پہنچنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے جو فتح حاصل کرنی تھی وہ کر چکے، اب ہماری باری ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کو مسلمانوں کی لاشیں دکھاؤں گا۔ کب بیٹی نے بچوں کے اس اشتیاق سے پوچھا، مجھے خالد کی لاش دکھانا محترم پدر، یہاں سب کہتے ہیں کہ وہ انسانی کے روپ میں آیا ہوا جن ہے۔ بہمن جاذبیہ نے بڑی زور کا کہہ لگایا۔ بہمن جاذبیہ کا یہ فاتحانہ اور تنزیہ کہا پہلے کسرے کے محلات میں پہنچا، وہاں سے سلاروں تک گیا۔ پھر مدائن کی ہزیمت خوردہ فوج نے سنا اور پھر یہ احکام اور احتیاط کی صورت اختیار کر گیا۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی نے اپنی تمام سہیلیوں اور شاہی محل کی عورتوں کو اور جس کے ساتھ بھی اس کی بات ہوئی یہ الفاظ کہ میں تمہیں خالد کی لاش دکھاؤں گی۔ خالد کی لاش۔ تقریباً ہر لڑکی اور ہر عورت کا رد عمل یہی تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ انسان نہیں، اسے دیکھ کر فوجیں بھاگ جاتی ہیں۔ شاہی استبل میں جہاں شاہی خاندان اور سلاروں کے گھوڑے ہوتے تھے، گہما گہمی بڑھ گئی تھی۔ سائسوں کو حکم ملا تھا کہ گھوڑوں میں ذرا سا بھی نقص یا کروری دیکھیں تو اسے ٹھیک کریں یا اسے ہلاک کر دیں۔ بہمن جاذبیہ کی بیٹی اس طرح ہر طرف کودتی پھر رہی تھی جس طرح عید کا چاند نظر آ گیا ہو۔ دیکھ کر نئے کپڑوں کی خوشی میں ناچنے کودتے بچے لگتے ہیں۔ وہ استبل میں گئی، وہاں اس کے باپ کے گھوڑوں کے ساتھ اس کا اپنا گھوڑا بھی تھا جو باپ نے اسے تحفے کے طور پر دیا ہوا تھا۔ میرے گھوڑے کا بہت خیال رکھنا، اس نے اپنے خاندان کے سائز سے کہا، ایک عدیل عمر سائز جو 3-4 مہینے پہلے اس استبل میں آیا تھا، دوڑا آیا اور لڑکی سے پوچھا کہ اپنی فوج کہیں جا رہی ہے یا مدینہ کا لشکر کے حملے کا خطرہ ہے؟ اب تم مدینہ والوں کی لاشیں دیکھو گے۔ لڑکی نے کہا، باقی گھوڑوں کے سائز بھی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی تازہ خبر سننا چاہتے تھے۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ خالد تھوڑی سی فوج پیچھے چھوڑ کر زیادہ تر فوج اپنے ساتھ لے گیا اور وہ عراق سے دور نکل گیا۔ یہ تمام تر علاقہ جو خالد نے فارس والوں سے چھینا تھا عراق تھا۔ لڑکی نے سائسوں کو بتایا کہ اب اپنی فوج پہلے عین التمر پر پھر دوسرے شہروں پر حملہ کر کے انہیں دوبارہ اپنے قبضے میں لے گی۔ اگر خالد واپس آیا تو بھی اسے اپنی شکست اور موت کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا اور کچھ ملے گا نہیں۔ کیسے زندہ پکڑا جائے گا؟ عدیل عمر سائس نے مسور سے لہجے میں پوچھا، زندہ یا مردہ؟
बैमन की बेटी ने कहा, इसे मदैन लाया जाएगा, अगर जिंदा हुआ तो इसका सर कलम होता देखोगे। 3-4 रोज गुजरे तो ये 1.5 उम्र साइस लापता हो गया। इसे सब असाई अरब समझते थे, हंसमुख और मलनसार आदमी। सिर्फ एक साइस ने इसके मुतलक बताया था कि वो कहता था कि वो अपने कबीले में वापस जाना चाहता है, जहां वो कबीले की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। वो अपने खानदान के इन मख्तूलीन का इंतकाम लेना चाहता था जो 2 जंगों में मुसलमानों के हाथों मारे गए थे। जिस वक्त शाही अस्तबल में इस साइस की गैर हाजिरी की मुतल्लिक बातें हो रही थी, इस वक्त वो मदैन से दूर निकल गया था। मदैन से वो शाम को निकला था, जब शहर के दरवाजे अभी खुले थे। इसके पास अपना घोड़ा था। किसी को भी नहीं मालूम था कि वो ईसाई नहीं मुसलमान था, और वो इस इलाके का रहने वाला था जिस पर ईरान के आतिश परस्तों का कब्जा था। वो मसन्ना बिन हारसा का छापा मार जासूस था। इसने मदैन में जाकर शाही अस्तबल की नौकरी हासिल कर ली थी। बामन जाज़िया की बेटी से इसने इराक से हजरत खालिद बिन वलीद और इनके लश्कर की रवानगी और मदैन के सलारों के अज़ाम की तफसील सुनी तो वो इसी शाम मदैन से निकल आया। ये इतला बहुत कीमती थी। सूरज ने गुरूब होकर जब इसके और मदैन की शहर पनाह के दरमियान स्याह पर्दा डाल दिया तो इस मुसलमान जासूस ने घोड़े को रेट लगाया। इसकी मंजिल अंबार थी, जहां तक वो उड़कर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जहां घोड़ा थकता महसूस होता वो इसकी रफ्तार कम कर देता। सिर्फ एक जगह इसने घोड़े को पानी पिलाया। अगले रोज का सूर्य उफक से उठाया। जब वो अंबार में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो सलार जबरकान बिन बदर के पास बैठा हुआ था, वो हाँप रहा था। इसने हाँपते हुए सुना कि मदैन में क्या हो रहा है। मैं इसी रोज आ जाता जिस रोज मुझे बैमन की बेटी से खबर मिली थी, इसने सलार जबरकान से कहा, लेकिन मैं वहां 3 दिन ये देखने के लिए रुका रहा कि दुश्मन क्या तैयारियां कर रहा है और सबसे पहले कहां हमला करेगा। इस जासूस ने, जिसे तारीख ने एक जासूस लिखा है, मदीना की फौज के सलार जबरकान बिन बदर को जो तफसील रिपोर्ट दी वो तारीख का हिस्सा है, और तकरीबन हर मौरख ने बयान किया है। हजरत खालिद बिन वलीद जब ऐनुल तमर से इयाज बिन गम की मदद के लिए तमतल जंदल के लिए रवाना हुए तो ऐनुल तमर से एक ईसाई अरब ने मदैन इतला भेज दी कि खालिद इराक से चले गए। इनकी मंजिल तमतल जंदल बताई गई। इससे मदैन की तजर्बाकार सलार बामन जाज़िया ने ये राय कायम की कि मुसलमान तख्त और ताराज और लूट मार करने आए थे और अपने कुछ दस्ते बराए नाम कब्जा बरकरार रखने के लिए पीछे छोड़ गए, और ये दस्ते जरा से दबाव से भाग उठेंगे। इस जमाने में अक्सर यूं होता था कि कोई बादशाह बहुत बड़ी फौज तैयार करके तूफान की मनंद यके बाद दिगरे कई मुल्कों पर चढ़ाई करता और कत्ले आम और लूट मार करता अपने पीछे खंडर और लाशों के अंबार छोड़ जाता था। वो किसी भी मुल्क पर मुस्तकिल तौर पर कब्जा नहीं करता था। और मदैन के महल में हजरत खालिद बिन वलीद के कूच के मुतल्लिक यही राय कायम हो गई थी, लेकिन खालिद ने इराक में फारस के जो मकबूजा शहर और बड़े किले फतह किए थे, वहां वो एक एक सलार और कुछ दस्ते छोड़ गए थे। ये सूरत कसरा के सलारों को कुछ परेशान कर रही थी। फौज के मदैन से निकालो, हमले पर हमले करो। कसरा के दरबार से हुक्म जारी हुआ, हम तैयार हैं। शेरजाद ने कहा, जो हाकम साबात था और अंबार से मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागा था, हम बिल्कुल तैयार हैं। महरान बिन बहराम ने कहा, जो ऐनुल तमर का घोड़ा था मगर लश्कर तैयार नहीं। बामन जाज़िया ने कहा, जो तजर्बाकार सलार थे, शिकस्त तो इसने भी खाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ तजर्बा हासिल किया था। क्या कह रहे हो? बैमन कसरा ने इस वक्त के जानशीन ने कहा, क्या हमने इस लश्कर को इसलिए पाला था कि शिकस्त खाकर हमारे पास भाग आए और हम इन सिपाहियों और कमांडरों को सांडों की तरह पालते रहे? अगर इन सिपाहियों और कमांडरों को सजा देनी है तो आज ही कूच का हुक्म दे दें। बामन जाज़िया ने कहा, अपने लश्कर की हालत मुझसे नहीं सुने। इसने अपने लश्कर की जो कैफियत बयान की वो मौरखों और बाद के जंगी मबसरों के अल्फाज यूं थी कि फारस की जंगी ताकत पुराने और तजर्बाकार सिपाहियों के पेश नजर नफरी मुसलमानों के हाथों 4-5 जंगों में मारी जा चुकी थी, या जिस्मानी लिहाज से माजूर बल्कि अपाहज हो गई थी। खासी तादाद जंगी कैदी थी और लश्कर के जो सिपाही इनके कमांडर बच गए थे वो ज़हनी माजूर नजर आते थे।
3 अल्फाज मदीना, खालिद बिन वलीद और मुसलमान, इनके लिए खौफ का बायस बन गए थे। वो फौरी तौर पर मैदान जंग में जाने और लड़ने के काबिल नहीं रहे थे। इनका जोश और जज्बा बुरी तरह मजरूह हो गया था। घोड़ों की भी कमी वाक़या होती गई थी। बामन जाज़वी ने दरबार खास में बताया कि जो ईसाई कबीले इनके इत्तेहादी बनकर लड़े, इनकी भी यही कैफियत थी। महराम बिन बहराम ने इन्हें ऐनुल तमर में जो धोखा दिया था, इसकी वजह से वो फारस वालों के साथ मिलने से इनकार कर सकते थे, फिर भी इन्हें साथ बुला लिया जाएगा। बामन जाज़वी ने कहा, लेकिन अपने लश्कर की 1000 जवान आदमियों की भर्ती की जरूरत है। हमें अपने लश्कर में नया खून शामिल करना पड़ेगा। इन जवानों को हम बताएंगे कि मुसलमानों ने इनकी शानशाही को, इनकी गैरत को और इनके मजहब को ललकारा है। अगर उन्होंने मुसलमानों को सफा हस्ती से मटा ना दिया तो इन पर जबरदस्त का कहर नाज़िल होगा। इनका जवान और कुंवारी बहनों को मुसलमान अपनी लौंडियां बना लेंगे। इतने ज्यादा लश्कर की क्या जरूरत है? महराम बिन बहराम ने कहा, इतला तो यही मिली है कि हर जगह मुसलमानों की नफरी बराए नाम है। हर शहर और हर किले में हमारे अपने आदमी मौजूद हैं। शेरजाद ने कहा, इस वक्त मुसलमानों की मुलाजमत में है, लेकिन इन्हें जब पता चलेगा कि फारस की फौज ने शहर का मुहासरा किया है तो वो अंदर से किले के दरवाजे खोल देंगे। मोहम्मद जाज़वी ने शेरजाद की पूरी बात करते हुए कहा, तुम झूठी उम्मीदों के सहारे लड़ाई लड़ना चाहते हो। मुझे इतलाएं मिलती रहती हैं मुसलमान अपने मफतूआ और महकूम लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक करते हैं कि इनके साथ कोई आदमी बेवफाई नहीं कर सकता। अगर फातिहा अपने मफतू की जवान और असीर बेटियों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और इसकी इज्जत और अमवाल को तहफ़्फ़ुज़ दे तो मफतूआ ऐसे फातिहा के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। न सही शाही खानदान के किसी फर्द ने कहा, इतने ज्यादा लश्कर की फिर भी जरूरत नहीं है। ये इन सलारों से पूछें जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर आए हैं। महमूद जाज़वी ने कहा, मैं तो कहता हूं कि मुसलमान जितने थोड़े होते हैं इतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ये भी ख्याल रखें कि मुसलमान किला बंद होंगे तो इन्हें जेर करने के लिए हमारे पास 10 गुना नफरी होनी चाहिए। मैं अपनी जवाबी कार्रवाई का फैसला कौन बनाना चाहता हूँ। ये ख्याल भी रखो कि हम एक दिन में मकबूजा शहर मुसलमानों से वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम रुकते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।